Good morning, everyone. Everybody, good morning. Today we will going to study online classes. The class 7th subject SSC Geography. The topic is environment. So, firstly we are going to about the subtopic. Firstly, definition of environment, components of environment, and ecosystem. This is the most important subtopic of in this chapter. So firstly, what is environment? Environment क्या है? Environment means वातावरण. So environment क्या है? Environment our surrounding many things like house, land, soil, water. All those things are environment because those things are gives us about many facilities like environment water that we drink, environment land that we use agriculture, construct building, environment air that we use our breath, etc. So environment क्या है? All the things, everything which are our surrounding area. So हमारे आसपास जो पेड़ पौधा जमीन मिट्टी नदी घर बिल्डिंग जो कुछ है हमारे आसपास इस सबको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. नेक्स्टली वी आर गोइंग टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स, all the things are include many components like environment are include different components. Firstly, environment components are divided mainly three parts: natural environment, human-made environment, and human environment. This is the component. Firstly, natural environment. Our nature give us many natural things like land, soil, water. All those things are natural environment. But it is divided two parts: abiotic and biotic. What is biotic? Natural environment, यानी biotic natural component. और what is abiotic natural component? Biotic. All the biological living things. That means जिसका जीवन है हमारा environment में, जिस चीज का जीवन है जो अपना जीवन को ग्रो कर सकता है, जिसका लाइफ बींग्स है, उसको क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्टली abiotic, all the नॉन बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स यानी जिसका जीवन नहीं है. लाइक द एग्जांपल नॉन बायोलॉजिकल लिविंग थिंग यानी abiotic कंपोनेंट लैंड सॉइल वाटर. दे हैव नो लाइफ बट दे सपोर्टेड द आवर लाइफ. दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट. abiotic component, biotic component, all the biological living things like animals, plant, etc. Nextly, human environment, मनुष्य, human ethnicity, human culture, human activity, human intelligence. That is the human environment. Education, family, etc. और human-made environment क्या है? Human-made, all the things which are made by human. That is the human-made environment. Likely playground, building, park, railway bridge, road, etc. So this is the component of environment. So nextly we are details going to about components of environment. So we are going to about components of environment. Environment are including different components. Likely mainly are divided three parts of component. Firstly, natural environment, human environment, and human-made environment. What is natural environment? All the natural things which give us many facilities, all the natural gifts are called natural environment. Likely it's are divided two parts: biotic and abiotic. यानी environment में जो natural environment है हमारे आसपास, ये natural environment में कुछ बायोटिक है और कुछ abiotic है. बायोटिक क्या है? ऑल द बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स लाइकली
बायोस्फीयर यानी लाइफ सर्कल जिसमें चलता है, प्लांट, एनिमल एटसेट्रा। और एबायोटिक ऑल द नॉन बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स यानी एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर सॉइल, लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, दैट इज द एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है ना, पार्क, ब्रिज, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, मोनूमेंट व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मतलब वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें ऐसा कुछ चीज है जो क्या ना ह्यूमन बीइंग्स से द्वारा बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, क्योंकि दैट इज इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। लाइक एग्जांपल पार्क, ब्रिज, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, मोनूमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है ना, फैमिली, एथनिसिटी, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, economics etc. because they are different. This family member, community, group of community, religion, different religion, people, educational, different educational purpose, IT sector etc. economics, different economic activities, primary, secondary, tertiary. यानी primary that means agriculture, secondary that means industry sector, or tertiary that means they are both including primary sector and tertiary sector. That is the human environment. So nextly we will going to about detail biotic and abiotic environment. So nextly we are going to different parts of natural environment. Details. Firstly, क्या ना, the different parts of environment have a 4 part: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. About lithosphere. Lithosphere क्या है ना, the solid crust top on the earth, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो सॉलिड क्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग जाएंगे तो क्या है ना, पृथ्वी का ऊपर जो सॉलिड क्रस्ट है इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। दैट इज द लिथोस्फीयर डिवाइडेड at 2 parts: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लिथोस्फीयर मींस क्या है ना, टॉप ऑफ सॉलिड क्रस्ट। क्रस्ट मींस क्या है ना, इट्स अ 2 part: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महादेश के जो जमीन है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड ओशियानिक क्रस्ट दैट इज द समुद्र तलदेश, उसका जो नीचे जमीन है उसको क्या बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट। हम लोग लैंड सरफेस में इसको डिटेल्स देखेंगे तो दैट इज द कॉन्टिनेंट, ओशन, कॉन्टिनेंट, इसके नीचे जो जमीन है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहां से यहां तक। और समुद्र के नीचे जो जमीन है इसको क्या बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट। ऑल आर दोज इंक्लूडिंग लिथोस्फीयर। इट्स स्ट्रेंथ कितना है ना, 0 to about 40 to 60 किलोमीटर, 40 to 60 किलोमीटर। यानी इंटरनल में हम लोग जाएंगे तो लिथोस्फीयर का जो डेप्थ, जो ग्रेविटी वो कितना मिलता है ना, 40 से 60 किलोमीटर तक क्या ना हमारा लिथोस्फीयर है। इट्स डिवाइड 2 part: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी इसको दूसरा भाषा में किया जाता है सियाल, दूसरा भाषा में किया जाता है सियाल। सियाल मींस क्या है ना, this name includes their dependent components. सियाल, Si means सिलिका और Al means aluminium। और क्योंकि lithosphere are composed by minerals and rock, so different minerals are included like silica, aluminium, that is the continental crust, continental lithosphere, that is called Sial, and Sima यानी सिलिका एंड ए में मतलब मैग्नीशियम, ये क्या ना मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स कंपोनेंट के द्वारा लिथोस्फीयर बना हुआ है। तो लिथोस्फीयर दैट मींस क्या ना, शिला मंडल, रॉक मंडल, लैंड का लैंड दैट्स आर यूज्ड वी आर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, मेकिंग रोडवे, पार्क एटसेट्रा। लिथोस्फीयर, दिस इज द एनवायरमेंटल फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट क्या है ना, हाइड्रोस्फीयर. व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? ऑल द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. सराउंडिंग नियरबाई आसपास. हाइड्रोस्फीयर. अबाउट हाइड्रोस्फीयर, सोर्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर. फर्स्ट क्या ना, हाइड्रोस्फीयर मींस क्या ना, ऑल द वाटर बॉडीज इन आवर अर्थ. पृथ्वी के ऊपरी भाग में जितना सारे वाटर है, पानी है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. तो सोर्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, रेन वाटर, ओशन वाटर, रिवर वाटर, इवापोरेशन वाटर एटसेट्रा. ये क्या ना, सोर्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर आर इंक्लूड एवरी टाइम. एक वाटर साइकिल के द्वारा हाइड्रोस्फीयर इंक्लूडिंग होता है. वाटर साइकिल के द्वारा. वाटर साइकिल क्या है? फर्स्ट क्या ना, हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर है वो क्या ना, एक सर्कुलर प्रोसेस में एवरी टाइम क्या ना, वो इंक्लूड हो रहा है. लाइक वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है ना, दिस इज द लैंड सरफेस, ओशन. फर्स्ट क्या ना, ऑन द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स क्या ना, सन रे. सन रे के द्वारा सन टेम्परेचर पानी में लग रहा है. टेम्परेचर के द्वारा क्या ना, पानी हीट हो जा रहा है. पानी हीट होने से क्या ना, इवापोरेट यानी इवापोरेशन, भाप बनकर पानी ऊपर चला जा रहा है. ऑन द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, द सन टेम्परेचर इंक्लूडिंग इन वाटर, that is water are heated. After the heated water evaporate. On the process of evaporation, evaporated water goes off on the sky. Then on the process of condensation, this water are correlation point and make rain. Next time फिर वाटर वापस आ गया. यानी क्या हुआ, सूर्य के धूप के कारण तालाब का पानी, समुद्र का पानी, यानी लैंड सरफेस के ऊपर जितना पानी है, पेड़ का इवापोरेट पानी, सब क्या ना, भाप बनकर ऊपर चला जाता है इवापोरेशन प्रोसेस में. ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या ना, वो जम जाता है. क्योंकि फ्रॉम द लैंड टू अप हाई, व्हेन वी आर गोइंग द टेम्परेचर इज डिक्रीज. तो टेम्परेचर कम होने से कारण क्या ना, वहां भाप बनने वाला पानी क्या ना, वो जम जाता है. जमने के बाद क्या है ना, वो आइस क्रिस्टल के द्वारा आइस क्रिस्टल बन जाता है, यानी बर्फ का छाला बन जाता है. जब वो बर्फ का छाला बन जाता है तब क्या ना, वो अपना वेट को नहीं पकड़ पाते हैं. नेक्स्ट क्या ना, वो गिरते रहता है. जब धीरे धीरे वो गिरते रहता है, नीचे टेम्परेचर बढ़ते रहता है और बर्फ क्या ना, पिघलते हैं और बारिश बन के नीचे आता है. ये क्या ना, वाटर साइकिल प्रोसेस. नेक्स्ट बायोस्फीयर. नेक्स्ट क्या ना, एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मींस क्या ना, एयर. एयर, ऑल द एयर बॉडीज कोई सराउंडिंग नियर बाय अर्थ. पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है, दैट इज द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर आर कंपोज डिफरेंट कंपोनेंट लाइकली वाटर वेपर, एरोसोल, गैस. यानी एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहता है? एटमॉस्फेयर में जो हवा रहता है उसमें क्या क्या रहता है? वाटर वेपर, एरोसोल एंड गैस. वाटर वेपर क्या है ना, भाप बनने वाला पानी, समुद्र का पानी, तालाब का पानी और सूर्य के धूप की वजह से जब भाप बनकर ऊपर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर. 30% वाटर वेपर क्या है? इंक्लूडिंग इन आवर एटमॉस्फेयर. एंड एरोसोल. एरोसोल क्या है ना, डस्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट, वोल्केनिक डस्ट, फैक्ट्रीज डस्ट, लैंडस्लाइड डस्ट एटसेट्रा. धूल, जिसको क्या बोलते हैं? धूल. स्मॉल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो धूल है उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल. ये भी एटमॉस्फेयर में है. एंड गैस. 90% गैस का पोजीशन है एटमॉस्फेयर में, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. इनमें से क्या ना, सबसे नाइट्रोजन का परिमाण क्या ना, सबसे ज्यादा है, 78 पॉइंट समथिंग. उसके बाद ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 समथिंग. दैट इज द क्या ना,
गैस, ये क्या है हमारा, क्या चलेगा, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? द लाइफ बीइंग प्रोसेस, the life being process which depend on in our environment with atmosphere, hydrosphere and lithosphere। यानी बायोस्फीयर क्या है ना, बायोस्फीयर क्या है, एक जीवन सर्कल है जो क्या है ना हमारा इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करके, हाइड्रोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करके एंड लिथोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करके ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर मतलब लाइफ बीइंग्स, जीवन सर्कल। यानी एक ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ, एक प्लांट का लाइफ क्या ना लिथोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करके होता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करके होता है एंड हाइड्रोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करके होता है। जैसे क्या ना बायोस्फीयर। नेक्स्टली, बायोस्फीयर refers to us about ecosystem। What is an ecosystem? Ecosystem क्या है? Ecosystem is the process of interaction life beings which all the living and non-living organisms are depend on each other, that is the ecosystem। ecosystem क्या ना एक प्रोसेस है, इकोसिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें क्या ना लाइफ, एक लाइफ चलाने का प्रोसेस है जिसमें क्या ना इन्वायरमेंट का ऑल थिंग्स, सभी चीज क्या ना एक दूसरे के ऊपर क्या ना डिपेंड करके ग्रो होता है। हम सब क्या ना अकेला कभी जी नहीं सकते, हमको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके जीना पड़ता है, दैट इज द इकोसिस्टम। सो दिस पार्ट कंप्लीट आवर एनवायरनमेंट टॉपिक। तो मेनली we are study mostly about what is environment। From the above conversation you surround that the place, people, things, organism is called environment। और next mostly हम लोग यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, what is environment, mainly component of environment और the parts of environment about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere। So everybody, thank you। So nextly we are going to some important question in this chapter। Firstly, what is ecosystem? Ecosystem क्या है? Ecosystem is the process of living। In this process all the organism, all the abiotic and biotic component are interaction on each other। यानी इकोसिस्टम एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा सभी लिविंग बीइंग्स, बायोटिक और एबायोटिक, सब क्या ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपना जीवन को चलाते रहता है, ठीक है ना, दैट इज द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? हम लोग के आसपास जो घर, जमीन, पेड़ पौधा सब कुछ एक साथ, इसको कहता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, which of the major components of environment? Already we have read this question। major components of environment, natural components, human environment and human-made environment। नेचुरल में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और ह्यूमन एनवायरनमेंट, फैमिली, इथनिसिटी, कल्चर, एजुकेशन एटसेट्रा। और ह्यूमन में एनवायरनमेंट में ह्यूमन में कंपोनेंट में ब्रिज, बिल्डिंग, रोडवे, पार्क एटसेट्रा जो मनुष्य के द्वारा बना है। नेक्स्ट, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर क्या है? द टॉप मोस्ट crust, the top most layer, जिसको crust बोलते हैं, on the, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो सबसे ऊपरी भाग का जो जमीन है जिसका डेप्थ 0 to 40 to 60, 40 से 60 किलोमीटर तक जो डेप्थ है उसी को क्या बोलते हैं? crust बोलते हैं। What is lithosphere? That is called lithosphere। The topmost earth crust are called lithosphere। It is two part, एक सियाल और एक सीमा। सियाल means
मिनरल माइनिंग कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करके इसको सीआर नाम दिया है। सीआर एसआई मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम, और उसका नीचे जो दिया है उसका नाम दिया गया है सीमा। एसआई मतलब सिलिका, एम मतलब मैग्नीशियम, यानी सीआर मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, और सीमा मतलब ओशियानिक लिथोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल, जीव जगत। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों में कंपोज होकर जो लाइफ बीइंग्स बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या है? ऑल द वाटर बॉडीज ऑन आवर अर्थ, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो वाटर बॉडीज है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। द सोर्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, प्रेसिपिटेशन वाटर, ओशन वाटर, पॉन्ड वाटर, आइस वाटर, स्नोफॉल वाटर, इवापोरेट वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी की चारों तरफ जो पतला एयर का ब्लैंकेट, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। द थिन एयर ब्लैंकेट ऑन आवर अर्थ, सराउंडिंग ऑन आवर अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ जो पतला हवा का जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। रीजन क्या है? मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट, क्या मनुष्य अपना एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकता है? यस, human beings modifies his environment because environment gives us many natural gifts, but we use this our for meet our aspiration on different level। यानी प्रकृति हम लोग को बहुत कुछ दिया है, हम लोग हमारे अपने सुविधा के हिसाब से अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, यानी हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। प्रकृति हम लोग को जमीन दिया है लेकिन प्रकृति खेती नहीं कर रहा है। वी आर डन एग्रीकल्चर ऑन दिस लैंड। जमीन के ऊपर घर बना रहा है, कभी घर तोड़ रहा है, कहीं पहाड़ काट के हम लोग रास्ता बना रहा है, यानी हम लोग एनवायरनमेंट मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। यस, plant or animal depends on each other because plant and animal both are vital component on the environment, but both are depend each other because plant give us oxygen for our respiration, same to we same to carbon dioxide for their respiration। so यानी प्लांट हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी CO2 फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में O2 प्रोड्यूस करते हैं और वो एनिमल्स को देते हैं, और एनिमल्स अपना दहन प्रक्रिया में CO2 प्रोड्यूस करते हो प्लांट को देते हैं, दोनों के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो कंप्लीट द दिस क्वेश्चन, आल्सो स्टडी केयरफुली। थैंक यू।